In this video, we will discuss the most important plant pathology questions that are frequently asked in ICAR JRF, SRF, ASRB NET, BHU PET and RET and other pre-PG exams. So please see this video till the end and don't forget to subscribe my channel. This is the 7th part, and if you want to see the previous 6 parts, please go to the description section. Link is given there. So hello friends, welcome to my channel Plant Pathology Pathshala. I am Jumishri Meher, PhD scholar from Banaras Hindu University. So let's start today's questions. So the first question is, the downy mildew fungus in which sporangiophore is branched at a right angle to the main axis and end with blunt sterigmata. So the answer is D. Plasmopara. Sporangiophore. Sporangiophore means the special hyphae or branch on which sporangiospores are produced. तो आप इसमें देख सकते हैं, this is the sporangiophore, okay, and it is branched. यहाँ पे आप ब्रांचिंग दे सकते हैं और ये ब्रांचिंग कैसा है, राइट एंगल ब्रांचिंग है, ओके। तो जो मेन एक्सिस है उस पे जितने ब्रांचेस निकले हुए हैं वो राइट एंगल में निकले हुए हैं, एंड जो उसमें स्टेरिगमाटा है वो पॉइंटेड नहीं है, वो ब्लंट स्टेरिगमाटास हैं, ओके। और ये किस में पाए जाते हैं ऐसे, प्लाज्मोपारा, प्लाज्मोपारा विटिकोला, इट कॉजिंग द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ओके। दिस इज द सिम्टम, downy cottony growth you can see here on the underside of the leaf surface of the grapevine leaf, okay. The next question is, heterothalism in fungi was first discovered in 1904 by, so the answer is A.F. Blaxley. Heterothalism means two different strain of thallus or two different thallus is needed for the sexual reproduction. Let's consider this one as plus strain and this one as the minus strain, okay. So this is a fungus thallus and this is another fungus thallus. So two different thallus is needed to produce this sexual spore, that is the zygospore, okay. Because the scientist A.F. Blaxley first discovered the heterothalism in Zygomycetes fungi, okay. So when दो different type of thallus need होता है for reproduction और sexual reproduction, उसको हम कहते हैं heterothalism. heterothalism का opposite है homothallism, means एक single thallus में या फिर एक single body of fungus में, उसमें एक ही thallus में both sex ऑर्गन्स जैसे कि एंथ्रीडियम या ऊगोनियम दोनों प्रोड्यूस होगा और उसके फ्यूजन से सेक्सुअल स्पोर या फिर रेस्टिंग स्पोर का प्रोडक्शन होगा। पर जब हेटेरोथैलिज्म फंजाई होता है उसमें दो डिफरेंट टाइप या फिर दो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ थैलस की ज़रूरत होता है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, zygospores आर फॉर्म्ड बाय द मेथड ऑफ, so the answer is C, gametangial copulation. These are 4 methods of sexual reproduction. Gametangial copulation means two gametangia or two sex organ, they will fuse to form a single unit, okay. Here you can see this two gametangia will fusing and it is forming a single zygospore, and they lose their identity, okay. There will be no more gametangia or sex organ are there, only it will produce a single zygospore. This type of reproduction need two different thallus, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि इन ज़ाइगोमाइसेटस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ज़ाइगोस्पोर टू स्ट्रेन और टू डिफरेंट टाइप ऑफ थैलस इज नीडेड, क्योंकि ये एक हेटेरोथैलिक फंगस है. And if you want to know more about the sexual reproduction, I have already made a separate video on sexual reproduction in fungi. You can see that video. Link is given in the description section. Next question. Xene for Xene hypothesis do not operates for.
So the answer is D, viroid. Gene for gene hypothesis means for resistance in plant, there must be a correspondence avirulent gene must be present in the pathogen. Okay. By the interaction of the avirulence and resistance gene, the plant will become resistant. Otherwise, in all rest cases, the disease will develop or the plant will become the susceptible. Okay. But in case of viroid, it does not code for any protein. I have already told that the virus contain a single stranded circular RNA. ओके, तो वायरस में एक छोटा बस सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर RNA रहता है और उसमें कोई प्रोटीन कोड भी नहीं रहता है। और जो RNA रहता है वो कोई mRNA या फिर प्रोटीन को कोड नहीं करता है। तो जो वायरस है वो कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये ऑपरेट नहीं करता है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस के अंडर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज causal agent of Panama wilt of banana is, so the answer is B, Fusarium oxysporum, former species cubans. This is also known as Fusarium wilt of banana. This pathogen generally colonize in the xylem vessel. Okay, तो ये जाइलम वेसल में कॉलोनाइज करता है, मल्टीप्लाई करेगा और वो जो न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्लो को ब्लॉक कर देगा जिससे कि प्लांट विल्ट हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हम विल्ट कंडीशन देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, so the answer is D, Joshua Liederberg and Norton Ginder. Transduction is a method of genetic variation in bacteria. तो जेनेटिक वेरिएशन इन बैक्टीरिया 3 मेथड से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन होने के लिए बैक्टीरिया एक बैक्टीरियोफेज नीड करता है, तो थ्रू द बैक्टीरियोफेज new genes will be inserted. Okay, that is called as transduction. Next question is genome of plant pathogenic bacteria contain how many genes? So the answer is A, 500 to 1000 gene. The bacterial genome is called as xenophore. Okay, तो टोटल जितना बैक्टीरिया में जीन्स हैं, जो क्रोमोजोम और जो जितने भी उसका क्रोमोजोम में या फिर प्लाज्मिड में जितने भी जीन हैं उसको मिला के कहा जाता है जीनोफोर। ओके, तो टोटल जीनोम इज नोन एज जीनोफोर। ओके, एंड ये किससे बनता है? बैक्टीरियल क्रोमोजोम से। क्रोमोजोम या फिर इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, तो ये न्यूक्लियोइड प्लस द प्लाज्मिड डीएनए, ये दोनों को मिला के हो जाएगा हमारा जीनोफोर। और टोटल कितना जीन्स प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया में? 500 to 1000 जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट फाइटोएलेक्सिन टू बी प्यूरिफाइड वाज, so the answer is C, pisatin. This is the phytoalexin produced in Pisum sativum or the pea. Okay, ये 3 भी phytoalexins हैं। Okay, जैसे sauerkraut produced in the rice plants and viniferin it's produced in the grapes. Okay, तो जो phytoalexin होता है वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दैट इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द पैथोजन। ओके, जब पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तब पैथोजन के रेस्पॉन्स में सेल डेथ हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। और जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के जो उसके सराउंडिंग सेल्स रहते हैं, जो हेल्दी सेल्स रहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं सम एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड, उसको कहा जाता है फाइटोएलेक्सिन्स। ओके, और जो फर्स्ट फाइटोएलेक्सिन प्यूरिफाइड किया गया था दैट इज द पिसाटिन। ओके, दैट इज
isolated from the P. This is the structure of P-cytin. Next question is, bactericidal protein produced by certain strain of bacteria which is active against some other strain of same or closely related species is called. So the answer is बैक्टीरियोसिडिन. तो ये बैक्टीरियोसिडिन कुछ ऐसा कंपाउंड्स होता है जो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है टू इनहिबिट द फंक्शनिंग ऑफ द अनदर बैक्टीरिया. और जो अनदर बैक्टीरिया होगा वो आइदर सेम स्ट्रेन का होगा या फिर रिलेटेड स्ट्रेन होगा. ऐसा नहीं कि दूसरे पूरे अलग अलग बैक्टीरिया को वो इनहिबिट करेगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को ही इनहिबिट करेगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्राई एंड अल्कली सॉइल फेवर्स व्हिच डिजीज? So the answer is B, common scab of potato. इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस. जनरली जब सॉइल का पीएच न्यूट्रल टू अल्कलाइन रहता है, जनरली 7 से ज़्यादा रहता है, तभी ये डिजीज सीवियरली इन्फेक्ट होता है. और इसको कंट्रोल करने के लिए जनरली एसिडिक कंडीशन या फिर 5 to 6 pH मेंटेन करना पड़ता है. ओके. तो अल्कलाइन कंडीशन डिजीज को फेवर करता है और एसिडिक कंडीशन मीन्स स्लाइटली एसिडिक कंडीशन डिजीज को इनहिबिट कर सकता है. देन दिस इज द सिम्टम ऑफ कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो. तो पोटैटो के सरफेस में स्कैब लाइक लेजन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे. ओके. दैट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, prion was first discovered by. So the answer is D, Prusiner. Prion means infectious protein. Here no nucleic acid is there. It is a infectious protein. Okay. It was first discovered by Stanley Bree Prusiner. He was also awarded with Nobel Prize in Physiology and Medicine. Okay. This is the structure of the prion. Okay. Whereas the viroid is infectious RNA molecule. Okay. It does not code for any type of protein. Only it contains a small circular single stranded RNA. Whereas the prion is only the protein part. Okay. Next question is, pathogen causing smut disease produce which type of resting spore? So the answer is C, teleospore. So the teleospore are resting spore produced by rust and smut fungi, that is the uridinals. Okay. ये टेलियोस्पोर जो होता है मे बी सिंगल सेल्ड होगा या फिर बाई सेल्ड हो सकता है, या फिर इसमें जो उसका स्टेरिगमाटा रह सकता है या फिर नहीं रह सकता है. बहुत टाइप्स के रहते हैं. ओके. पर ये रेस्टिंग स्पोर रहता है. जब कोई लूज स्मट होता है या फिर बर्न रहता है, उसमें ब्लैक पाउडरी मास जैसा स्ट्रक्चर बनता है. वो ब्लैक पाउडरी मास जो होता है वो होता है टेलियोस्पोर, जो कि रेस्टिंग स्पोर होता है. एंड इट हाइबरनेट इन सॉइल एंड व्हेन इट गेट इट्स होस्ट इट अगेन इन्फेक्ट द ससेप्टेबल हेल्थी होस्ट एंड अगेन इट कॉज द डिजीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, outer membrane present in cell wall of. So the answer is B, gram-negative bacteria. This is the structure of gram-negative and gram-positive bacterial cell envelope. Okay. तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और उसका जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन मल्टी लेयर में पाया जाता है. ओके. तो दिस इज द एनवलप ऑफ सेल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन तो रहता ही है, उसके बाद जो सेल वॉल होता है वो बहुत थिन होता है क्योंकि इसमें बहुत थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है. और इसमें एक्सटीरियर टू द सेल वॉल another layer is there, that is the outer membrane. It is mainly composed of
पॉलीसैकेराइड्स, ओके, एक्सोपॉलीसैकेराइड, इसको एंडोटॉक्सिन भी कहा जाता है। और जो पोरिन्स रहते हैं और या फिर जो पोर्स रहते हैं बैक्टीरिया सेल में, वो इसी लेयर में पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में, ओके। इसको एलपीएस या लिपोसैकेराइड लेयर भी कहा जाता है, ओके। So this is about the outer membrane of gram-negative bacteria. Next question is, types of SI formed by Claviceps species is. So the answer is B, unitunicate ascus. तो SI के अंदर एस्कोस्पोर फॉर्मेशन होता है, एंड जो SI रहता है वो जनरली 3 टाइप्स का रहता है, प्रोटोट्यूनिकेट, यूनिट्यूनिकेट एंड बाइट्यूनिकेट। जो प्रोटोट्यूनिकेट होता है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप रहता है, और उसमें जो उसका सेल वॉल रहेगा वो लेयर बहुत थिन रहता है। जब एस्कोस्पोर मैच्योर हो जाएंगी वो लेयर डिसोल्यूट हो जाएगा और एस्कोस्पोर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज द यूनिट्यूनिकेट टाइप। यूनिट्यूनिकेट टाइप में उसका जो वॉल रहता है वो 2 लेयर में डिफरेंशिएट होता है, एक होता है एंडोट्यूनिका और जो आउटर रहता है वो होता है एक्सोट्यूनिका, ओके। और ये 2 टाइप का रहता है, ऑपरकुलेट एस्कस और एक इनऑपरकुलेट यूनिट्यूनिकेट एस्कस। ऑपरकुलेट मीन्स उसका जो टिप पोर्शन में एक ओपनिंग रहेगा जिसके थ्रू वो रिलीज होगा, एस्कोस्पोर से रिलीज होगा। बट जो इनऑपरकुलेट रहता है उसमें ओपनिंग नहीं पाया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द बाइट्यूनिकेट। बाइट्यूनिकेट में भी उसका जो वॉल रहता है वो डिफरेंशिएट होगा एक्सोट्यूनिका और एंडोट्यूनिका में, पर जब एस्कोस्पोर का रिलीज होगा उस टाइम जो एंडोट्यूनिका होगा वो एक्सपांड कर जाएगा, और उसके बाद जो एस्कोस्पोर एंडोट्यूनिका के टिप में एक पोर होगा उसी से वो रिलीज होगा। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एस्कस प्रेजेंट इन एस्कोमाइसेटस फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लेस्टोथेसिया which with coiled appendages are formed by. So the answer is B, Unciluna species. Next question is, Cleistothesia with coiled appendages are formed by. So the answer is B, Unciluna species. तो जो क्लेस्टोथेसिया है वो एक एस्कोस्ट्रोमाटा या फिर एस्कोमा कहा जाता है, मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी है प्रोड्यूस बाय द एस्कोमाइसेटस फंजाई, जिसके अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। तो जनरली 4 टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं, क्लेस्टोथेसियम, देन पेरिथेसियम, एपोथेसियम एंड एस्कोस्ट्रोमाटा, ओके। तो जो अंसिलोना स्पीसीज है वो क्लेस्टोथेसिया प्रोड्यूस करता है, और उसके सरफेस में जो एपेंडेजेस रहते हैं वो कॉइल्ड एपेंडेजेस रहते हैं, ठीक है। तो अंसिलोना नेकाटर, इट इज causing the powdery mildew of grapes. This is a very important pathogen, okay, and very important disease. Please remember this. Next question is, Teleotospore are single-celled, sessile and laterally united to form layer in. So the answer is C, Melamopspora species. Teleotospore means the teleospore only, okay, both are similar. तो जो मेलामोस्पोरा है उसमें जो टेलियोस्पोर प्रोड्यूस होगा वो सब एपिडर्मल होगा, ओके, और वो लेयर होगा, उसमें कोई स्टेरिगमाटा नहीं होगा, वो सेसाइल होगा और सिंगल सेल्ड का होगा। दिस इज द नेचर ऑफ टेलियोस्पोर ऑफ मेलामोस्पोरा। मेलामोस्पोरा लिनी, दैट इज कॉजिंग द लिंसेट रस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, thickness of cell wall of gram-negative bacteria varies from. So the answer is C, 1 to 10 nanometer. I have already told that the gram-positive bacterial cell wall consists of multi-layer of peptidoglycan and it is thick in nature, and its thickness varies from 20 to 80 नैनोमीटर। पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसका
जो सेल वॉल होता है उसमें थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है एंड इसका थिकनेस वेरी स्मॉल रहता है, दैट इज 1 to 10 नैनोमीटर इन साइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ डेमीसाइक्लिक रस्ट इज. So the answer is D, cedar apple rust. तो जो रस्ट होता है वो 3 टाइप का रस्ट साइकिल होता है, एक मैक्रोसाइक्लिक, देन माइक्रोसाइक्लिक और एक डेमीसाइक्लिक. जो डेमीसाइक्लिक होता है उसमें यूरिडोस्पोर प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेमीसाइक्लिक फंगस. तो जो सीडर एप्पल रस्ट फंजाई है उसमें यूरिडोस्पोर नहीं पाया जाता है. दिस इज द सिम्टम ऑफ सीडर एप्पल रस्ट. ओके, रस्टी पॉस्ट्यूल्स आर डेवलप्ड ऑन द लीफ सरफेस. Next question is, the bacteria Streptomyces cabis enters into the plant cell through. So the answer is C, lenticel. Generally, bacteria enters into the plant cell through natural opening or the wound. Okay. तो जो बैक्टीरिया होता है वो कोई मैकेनिकल फोर्स अप्लाई नहीं करता है, लाइक द फंगस मैकेनिकल फोर्स से भी पेनिट्रेट कर सकता है, बट जो बैक्टीरिया होता है वो आइदर नेचुरल ओपनिंग से या फिर वुंड से एंटर करता है इनटू द प्लांट सेल. तो जो लेंटिसेल होता है वो भी एक नेचुरल ओपनिंग होता है, और जो स्टेप्टोमाइसिस कैविस फंगस है दैट इज कॉजिंग द कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो एंटर करता है द प्लांट सेल थ्रू द लेंटिसेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ovulariopsis type Conidia are produced by. So the answer is C, Phylactinia species. This is a type of Conidia produced by the powdery mildew fungi. तो जो पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई है वो 3 टाइप का कोनिडिया प्रोड्यूस करता है. एक होता है ओइडियोप्सिस और एक होता है ओइडियम और एक ओव्यूलैरियोप्सिस. तो जो ओव्यूलैरियोप्सिस टाइप होता है वो प्रोड्यूस होता है माइसिलियम में, जिसमें जो माइसिलियम पार्टली एंडोफिटिक या फिर पार्टली एक्टोफिटिक होता है. तो जो बोथ एंडो एंड एक्टोफिटिक होता है उस टाइप ऑफ माइसिलियम में ओव्यूलैरियोप्सिस टाइप ऑफ कोनिडिया प्रोड्यूस होता है. ये जो कोनिडियोफोर होता है वो अनब्रांच्ड होगा. ओके, सेप्टेट होगा, सेप्टाइजर और अनब्रांच्ड होगा, और जो कोनिडिया होगा दैट इज रोम्बॉइड शेप्ड. ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द Ovulariopsis type Conidia. Next question is endophytic mycelium produced by. So the answer is D, Libellula. तो जो पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है वो जनरली एक्टोफिटिक होता है, पर कुछ एक्सेप्शन होता है जिसमें कुछ फंगस एंडोफिटिक होता है और कुछ होता है एक्टो एंडोफिटिक. जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में, जो फाइलेक्टिनिया स्पीसीज है वो एक्टो एंडोफिटिक होगा और उसमें ओव्यूलैरियोप्सिस कोनिडिया प्रोड्यूस होगा. जस्ट लाइक दैट जो लिबेलुला स्पीसीज है वो एंडोफिटिक माइसिलियम प्रोड्यूस करेगा. एंडोफिटिक मतलब जो माइसिलियम है या फिर जो हाइफा होगा वो प्लांट सेल के अंदर ग्रो करेगा. ओके, इनसाइड द प्लांट सेल. जो एक्टो एंडोफिटिक होगा वो आधा माइसिलियम प्लांट के सेल के अंदर पेनिट्रेट करके उसमें ग्रो करेगा और कुछ आधा माइसिलियम प्लांट सेल के ओवर ग्रो करेगा. ओके, सरफेस में. और जो एक्टोफिटिक माइसिलियम होगा वो पेनिट्रेट नहीं करेगा प्लांट सेल को, वो प्लांट सेल के सरफेस में ही ग्रो करेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द माइसिलियम ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई. तो ये 3 टाइप का होता है, एक्टोफिटिक, एंडोफिटिक और एक एक्टो एंडोफिटिक. This Libellula torsica, it is causing the powdery mildew in the pepper. Okay, this is the symptom. So this is the end of this video. If you found this video useful for you, please let me know in the comment section and don't forget to subscribe my channel. If you want to connect me in Instagram and Facebook, please see the description section. Link is given there. Thank you for watching this video.